Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. Last video we have seen the rules and regulations that should be followed while we are changing the sentence from active to passive. वो हमने rules देख लिए थे. आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कुछ और तरह के sentences को passive voice में कैसे change किया जाता है. Last video we have discussed about all the tenses. हमने tenses and the जितने भी pronouns थे हमारी objective and subjective form that we have seen thoroughly with the examples. आज हम देखेंगे some example of the voice change of assertive sentences. Assertive is called simple sentence जो होते हैं उनको change करने के लिए कुछ rules and कुछ examples देखते हैं. I do the work. सबसे पहले ये active लिखा हुआ है and these all sentences are changed in the passive form. I do the work. The work is done by me. But this table you will revise all the sentences of different tenses. ठीक है, एक बार revision कर लेते हैं. I do the work, present indefinite tense. Auxiliary verb is will come with third form of the main verb followed by the by. Leela writes a letter, again present indefinite tense. A letter will come here followed by auxiliary verb is verb की third form and by. Rita helped the old man, past indefinite tense. Auxiliary verb was will come for the subject the old man and then verb की third form by and the subject will go at the object position. Ram is playing cricket, present continuous tense. Cricket is and ing form will come in be and verb की third form Ram followed by. Cricket is being played by Ram. He has called me, present perfect tense. I, यहाँ पर me का subjective form आ जाएगा. I is considered as plural subject, तो यहाँ पे plural verb आएगी उसके साथ have. Then perfect tense है तो यहाँ पर been का use होगा. Verb की third form him followed by. Him is the objective form of he, यानी कि he की objective form आई है और me की subjective form आई है passive voice में. The had seen a picture. The lady लिख देते हैं. The picture had seen by them. Okay? यहाँ पे than नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ they. ठीक है? ये हो गया they had seen a picture. They had seen a picture. ये कौन सा है हमारा? This is past perfect tense. Now it is okay. No, it is not okay. Now it is okay. Okay? So they had seen a picture, past perfect tense. A picture had been, यहाँ पर भी been आया है, seen by them, they का objective form आया है them. You will play football, future indefinite tense. Football will then played और इसके बीच में आएगा form be by you. ठीक है, you का subjective और objective form दोनों एक सा होता है, you and you. Next is she would sing a song. यहाँ पर जो would है it is in modal auxiliary verb. ठीक है, ये एक modal verb है, so it will come as it is. A song would sung by her, बीच में आएगा be. क्यों आएगा be? क्योंकि would be जो है हमारी modal auxiliary है. Modal auxiliary will not take anything, any kind of verb of the main verb. तो यहाँ पे sung third form के बीच में यहाँ पर be आएगा and then she का objective form her followed by. She would have read the book. ठीक है, she would have read the book. The book would have been read by her. Future perfect tense का ये sentence है. Would have, the book would have been read by her. she का objective form her आ गया. ठीक है, तो ये हमारे एक तरह से revision हो गया all the tenses का. अब हम देखते हैं how to change voice of imperative sentences. जितने भी command, request, suggestion या advice के sentence होते हैं. Rule number 1, if the verb in the active voice expresses orders, क्या express हो रहा है? Order, request, advice, etc. The word let is used or placed at the beginning of the passive voice and be verb is placed before the past participle of the main verb. Be का जो form आता है वो past participle यानी main verb से पहले आता है और passive voice start कहाँ से होता है? Let से होता है. सीधे example, shut the door. This is imperative. ये क्या है? एक order है. Let the door be shut. ठीक है, सबसे पहले क्या आया? Let. उसके बाद आया object जो हमारा है the door आ गया. ठीक है, shut.
वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले बी का फॉर्म आएगा बी, ठीक है। इंपैरेटिव में एज इट इज व्हाटएवर द ऑक्सिलरी इज देयर वो आ जाएगी। टेल हिम टू गो, ये भी इंपैरेटिव सेंटेंस है, किससे स्टार्ट होगा? लेट, पहले लेट होगा स्टार्ट, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? टेल हिम, तो लेट हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं एकदम लास्ट में ही आए, ऑब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, तो लेट हिम टोल्ड, ठीक है। टेल की थर्ड फॉर्म आ गया टोल्ड, और हिम और टोल्ड के बीच में क्या आ गया? बी। यहाँ पे लिखा हुआ है बी हमेशा आएगी पास्ट पार्टिसिपल के पहले, तो लेट हिम बी टोल्ड टू गो। आई होप इट इज क्लियर। तो ये थे हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए ना। रूल नंबर सेकेंड देखते हैं। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद प्लीज, अगर रिक्वेस्ट फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड, क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये कंप्लीट आएगा, इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस in such cases, and intransitive verb also be changed into passive with you are requested to. Another form of the passive is with the verb should and be. यहाँ पे should आएगा, be आएगा, जो intransitive word है, verb है, may also change into passive. Intransitive का मतलब होता है without any object, क्या? Without any object, without object. Transitive is called with object and intransitive is called without object. ज़्यादातर पैसिव फॉर्म जो होते हैं, जितने भी आप एक्टिव बनाते हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही बनते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा सेंटेंस में तो आप पैसिव कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दीज थ्री आर वेरी मच एसेंशियल टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है या जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ होती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, कैसे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहाँ पे शुड और बी का फॉर्म आएगा। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज डू नॉट स्मोक, दिस वर्ड दिस सेंटेंस स्टार्टेड विद प्ली, तो प्लीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। अभी टू का प्लेस देखेंगे कि टू कहाँ पे लगेगा, बिकॉज टू विल कम बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। उसको मेन वर्ब के पहले आएगा, तो जो वहां जहां पे वर्ब आएगी वहीं पे हम प्लेस करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, नेगेटिव सेंटेंस है ना, नॉट, तो बीच में नॉट आएगा एंड देन टू स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लीज गो देयर, तो प्लीज विल चेंज इन यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये नेगेटिव नहीं था तो इसमें टू आ गया कंटिन्यूअस, और टू के बाद मेन वर्ब आया एंड देयर। Obey your teachers, your teacher should be obeyed। अभी देखो यहाँ पे क्या है, obey your teacher, it is again a kind of advice, ये advice ही तो है, बट यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लगा दोगे? ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट का फॉर्म लगाएंगे, ये आ गया आपका your teacher, उसके बाद obey your teacher, क्या है? ये एडवाइस है, तो एडवाइस में क्या आता है? कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आती है? should, मॉडल ऑक्सिलरी should आती है, should और मॉडल ऑक्सिलरी है, तो उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं आएगा, सेकेंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म, उससे पहले हम बी लगाएंगे। तो यहाँ पे ओबेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उससे पहले क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा योर टीचर शुड बी ओबेड। आई होप इट इज क्लियर। Keep your word, again it is advice but means whatever you have said, keep your words। तो यहाँ पे सबसे पहले हम your word लिखेंगे, your word and it is advice, तो कौन सा मॉडल वर्ब आएगा? should। kept वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बी आ जाएगा, your words should be kept, ठीक है। तो they are like this we will do the imperative sentence of order, command and request। next देखते हैं how to change the voice of imperative tenses। I think it is, we have done this, yes, the same, I think it is repeated। Okay, how to change the voice of interrogative sentences। अब देखते हैं हम। टेंस में मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम लोग लास्ट वीडियो में टेंस पढ़ रहे थे उसमें सारे मैंने इंटेरोगेटिव बताए थे, बट यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन एक बार फिर से बता देती हूँ। रूल नंबर 1, इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, do the process of changing is convenient by changing it into assertive first and then into interrogative। अगर किसी भी ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, मान लो do से, तो assertive में पहले चेंज करना है, उसके बाद इसको interrogative बनाएंगे, that will be more convenient for it। अभी देखो एग्जाम्पल देखो, do you see the bird, ये किससे स्टार्ट है? देखो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है क्वेश्चन, तो हमारा इसका assertive होगा you see the bird।
पैसिव टू असर्टिव बनाएंगे द बर्ड इज सीन बाय यू, या यहाँ पे इज द बर्ड सीन बाय यू, ये आपके सिर्फ हेल्प के लिए है, मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप इट इज मेकिंग यू टू रीच टू द सॉल्यूशन. इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट एग्जैक्टली इमीडिएटली, ठीक है, एज इट इज, तो यू कैन गो टू दैट. तो यहाँ पे सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है, ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप पहले उसको असर्टिव में चेंज करो फिर पैसिव में करो, नो, बट दिस इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, इट इज रिटन ओवर हियर ऑल्सो. यू सी द बर्ड, डू यू सी द बर्ड, यू सी द बर्ड, या द बर्ड इज सीन बाय यू. ये हमने क्या किया, पहले असर्टिव बनाया फिर असर्टिव का हमने पैसिव बना दिया. तो चलो आपका ये एक अनदर एग्जांपल हो गया, हम ऐसे लेते हैं. हम इंटेरोगेटिव देखते हैं, डू यू सी द बर्ड. तो डू की जगह सबसे पहले देखेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में कौन सी ऑक्सिलरीज आती है, इज, एम, आर, राइट. तो यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, द बर्ड. द बर्ड इज सिंगुलर, तो कौन सा हमारा ऑक्सिलरी आएगा, सिंगुलर के लिए इज आता है. तो सबसे पहले हमने इससे स्टार्ट किया, देन द बर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन एंड यू फॉलोड बाय अ वाइव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. वेरी इजी, ठीक है. नेक्स्ट देखो, डिड यू सी द मैन. टेंस इज past indefinite tense. If you will convert in assertive, you saw the man was seen by you. This is another sentence. Come to back here. अभी यहाँ पे did है, auxiliary क्या होते हैं, जो past के होते हैं was and were. be की फॉर्म लगानी है, मैंने आपको बताया passive फॉर्म में be की ही फॉर्म लगाएंगे. present के लिए is, am, are, past के लिए was, were. ठीक है, ये past का है तो इसमें was या were लगाएंगे. ऑब्जेक्ट देखते हैं पहले, the man हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा past के लिए, वो हुआ was. The man, उसके बाद आया the man, verb का third form, you followed by a by and question mark. I hope it is clear. The change, how to change into interrogative sentences. How to change the voice in interrogative sentences. Here, rule number 2. If the interrogative sentence does not begin with do, दो तरह से होते हैं ना interrogative, WH word and auxiliary verb. अगर ये begins with WH word, अगर WH word से start है, it can be directly changed into passive. कैसे चेंज करेंगे भाई, देखो, who taught you English, यहाँ पे ये आया हमारा who से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारा जो पैसिव होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ जाएगा by whom. ठीक है, तो आप बोल सकते हो हु किस में चेंज होता है, हमेशा बाय होम में. ठीक है, इसको आप लर्न कर लो. ये जहां से भी हु के जो भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे वो बाय होम से स्टार्ट होंगे आपके पैसिव. बाय होम, अभी देखो हु टॉट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट. आपको टेंस सब में देखना है, जस्ट मींस एक्सेप्ट द इंपैरेटिव सेंटेंस, उसको छोड़ दो, बाकी आपको टेंस सब में देखना है जिसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब आएगी. बाय होम क्या है, वर यू. क्या आएगा ऑक्सिलरी, वर. वाई, बिकॉज यू इज प्लूरल. taught English verb की थर्ड फॉर्म and English. By whom were you taught English. क्या किया हमने, यहाँ पे auxiliary लगाया, फिर you लगाया, subject लगाया, उसके बाद main verb और फिर rest of the sentence. By whom were you taught English. Next देखो, which book do you want. अभी यहाँ पर क्या करेंगे, which book do you want, इसका passive form हो जाएगा हमारा which book. ये which से ही स्टार्ट होगा, book आ जाएगा, which book do you want. यहाँ पे which book, book हमने ऐसे ही रखा. कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. कौन सी ऑक्सिलरी आएगी, is. why, because book is singular. wanted by you, वर्ब की थर्ड फॉर्म and you आ जाएगा आपका followed by why. which book, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है. ठीक है, ये क्या है, मतलब सेंटेंस कैसे भी आ सकता है, आपको समझ में आना चाहिए, बस कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट जो अलग है, इवन दैन वी विल मेट अकॉर्डिंग टू दैट which book is wanted by you. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा another form of voice is quasi-passive voice. Now quasi-passive voice is something sounds peculiar or new. सबसे पहले देखते हैं what is quasi-passive voice. A quasi-passive voice is active in form but passive in sense. Active in form but passive in sense, मतलब दोनों सेंस होते हैं इसमें. सेंस, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बस सेंस दे रहा है. कौन से, देखो एक्टिव, और ये रहा पैसिव. क्या होती हैं, देखो, हनी टेस्ट स्वीट्स, द रोज स्मेल स्वीट, द हाउस इज बिल्डिंग, द बुक इज प्रिंटिंग. ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ज्यादातर क्या होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट. आप बोल सकते हो इसमें. ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट्स इसमें रिगार्ड होते हैं. ठीक है, अभी देखो हनी टेस्ट स्वीट, तो यूनिवर्सल है, हनी का टेस्ट स्वीट ही होता है. पैसिव कैसे बनाएंगे, हनी, हमने हनी लिखा, टेस्ट स्वीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे कौन सी ऑक्सिलरी आएगी, इज आएगी. इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड. देखो आ गया, फिर से हमारा इट इज आया, यानी कि यहाँ पे दो पार्ट किए हैं. हनी इज स्वीट फर्स्ट पार्ट, व्हेन इट इज टेस्टेड सेकेंड पार्ट. इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना सब्जेक्ट है, वर्ब दोनों में अलग आ रही है. व्हेन इट इज टेस्टेड इट इज
पैसिव फॉर्म। ये पैसिव फॉर्म हो गया ना, देखो वैन, और ये हमारा आया ऑक्सिलरी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस को पहचानना बहुत आसान है। अगर आपको इज, एम, आर, ये कोई भी है, इज, एम, आर, और पास्ट की जो फॉर्म है हमारी वॉज एंड वर, इसके बाद अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो सेंटेंस है आपका वो पैसिव वॉइस में होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, मीन्स इट इज पैसिव। नेक्स्ट देखो, द रोज स्मेल स्वीट, द रोज इज स्वीट, फर्स्ट पार्ट, व्हेन इट इज स्मेल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय इज। ठीक है, यहाँ पे ये इसका फॉर्म आ गया, इसका फॉर्म आ गया। द हाउस इज बिल्डिंग, अभी देखो कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हम द हाउस से शुरू करेंगे, द हाउस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है, इसको हमको पैसिव बनाना है, यानी कि इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब है, या इसमें सारे में ऑब्जेक्ट अलग से नहीं आ रहे हैं। देखो जो हमारे स्टार्टिंग में आ रहे हैं हम उनको ही तो ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द पैसिव फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द टेंस बाय मेकिंग इट अनदर पार्ट। पैसिव वॉइस हम अपनी तरफ से ही तो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि क्वासी पैसिव वॉइस में इंट्रांसिटिव वर्ब्स आती हैं। द हाउस हमने ऐसे ही लिया, द हाउस इज, ठीक है, हमने इज ले लिया। अब इसको पैसिव कैसे बनाओगे, जो आईएनजी फॉर्म है, पैसिव वॉइस मतलब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म हमने बी में लगा दिया, बिल्ट हमने लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स पैसिव नाउ, राइट। नेक्स्ट देखो, द बुक इज प्रिंटिंग, एज इट इज द बुक विल कम, देन इज विल कम, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्रिंटिंग आ रहा है, यहाँ पे बीइंग प्रिंटेड आ रहा है, इट इज एक्टिव, इट इज पैसिव, वेरी इजी टू फाइंड आउट। नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस विद डिफरेंट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ देखते हैं एक बार, आई नो द फैक्ट, अभी मैंने बोला था हमेशा ज्यादातर सब्जेक्ट जो होता है वो बाय फॉलो क्या करता है, बाय व्हेन वी आर चेंजिंग इनटू द पैसिव वॉइस, बाय बाय बाय। बट मैंने आपको बोला था कुछ वर्ड होते हैं जिनके आगे प्रीपोजिशन चेंज हो जाती है, तो वो उसमें से एक वर्ड है नो। आई नो द फैक्ट, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लगाया, द फैक्ट, या कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ये रहा सब्जेक्ट यानी कि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई, और इससे पहले प्रीपोजिशन टू का यूज होगा, बाय का यूज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, अगर हम यहाँ पे बाय लिखेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाइट फिल्ड द रूम, द रूम वॉज, क्यों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वॉज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लाइट्स, यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी विद, बाय नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, अस का हम सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे, क्या आया, वी कैसा है, प्लूरल, तो वर आ जाएगा, पास्ट का ऑक्सिलरी, वी वर वेरी मच प्लीज्ड, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया हमने, हर मैनर्स प्लीज्ड हर वेरी मच, तो वेरी मच को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, प्लीज्ड वेरी मच, दिस इज द जो एडवर्बियल है वो किसके लिए आ रहा है, वर्ब के लिए आ रहा है ना, प्लीज्ड, तो यहाँ पे हम ये एडवर्ब आ गया, ये वर्ब आ गया, वेरी मच प्लीज्ड हर मैनर्स, और यहाँ पे विद हर मैनर्स आएगा, बाय हर मैनर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, फिल्ड, नो, मैनर्स जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, द पोएम्स ऑफ टैगोर इंटरेस्ट मी, अभी यहाँ पे मी की सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे आई, या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऑक्सिलरी आएगी आई के साथ एम, आई एम इंटरेस्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, द पोएम ऑफ टैगोर, किसमें इंटरेस्टेड हो, ये लिख दिया हमने, द पोएम्स ऑफ टैगोर, बाय द पोएम्स ऑफ टैगोर नहीं आएगा, इन द पोएम ऑफ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरेस्ट के बाद कौन सा आया हमारा, इन आ जाएगा हमारा फॉर्म। ठीक है, जस्ट मिनट, यस, ये आ गया हमारा, इंटरेस्ट के बाद आएगा इन, नो के बाद टू, फिल्ड के बाद विद, मैनर्स के बाद विद, एंड देन आफ्टर इंटरेस्ट वी हैव पुट इन। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिस इज द वर्कशीट फॉर यू दैट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल सेंटेंसेज आर देयर, मिक्स्ड सेंटेंसेज वर्कशीट इज दिस, try to solve this worksheet at your own, these are very simple sentences, you can easily be solved। ठीक है, आराम से कर लोगे। तो this was the topic of active and passive, जो आता है, नरेशन जो होता है आपका वो ज़्यादातर किस में होता है, पैसिव फॉर्म में होता है, इनका यूज़ क्या होता है, क्यों करते हैं, दैट इज एक्टिव फॉर्म, जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव फॉर्म, जब सेम कन्वर्सेशन अगर आप बोलते हो कि जहाँ पे जो कन्वर्ट कर रहा है, जो कन्वे कर रहा है, जब वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो जो जितने भी सेंटेंस बनाए जाते हैं वो पैसिव फॉर्म में होते हैं। एक्टिव पैसिव क्यों बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक्टिव मींस जहां पर कन्वर्सेशन इज इन एक्टिव स्टेट, ठीक है, वहां पे दोनों जरूरी है, जो कन्वर्सेशन कर रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो सब्जेक्ट है।
पैसिव फॉर्म हम इसलिए बनाते हैं, जो ज़्यादातर इनको फैक्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो जितने भी आपके बुक इस फैक्ट होते हैं या नरेशन या टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर पैसिव फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि ये किसने किया, ठीक है। स्पीकर या डूअर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो दिस वॉज द एक्टिव पैसिव फॉर्म विद द एक्सरसाइज. नाउ वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक in the next video. That's it for now. Thank you.